Welcome to Redix. In this video, we will discuss problems on boat, stream and trains. And this concept is brought to you by your maths guru, Bharat Gupta. Okay, question number 1. If the speed of swimmer in still water is 9 km per hour, x is equal 9 km per hour and speed of current y is equal 5 km per hour, then find the speed of swimmer against the current. It is x minus y. Then answer is 4 km per hour. Answer is A option. Next question. A boat covers a distance of 12 km against the current in 48 minutes. देखो यार, y आपको दे रखा है 2 km पर आवर. मैंने आपको बताया था कि y हमेशा स्पीड ऑफ करंट मानते हैं और x मानते हैं हम स्पीड ऑफ बोट, जो हमें पूछा हुआ है. अच्छा, अगेंस्ट द करंट जा रहा है x माइनस वाई इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, टाइम है 48 मिनट. इसको कवर कर लो आवर्स में, तो ये जाएगा कितना 15. x माइनस 2 इज इक्वल 15, x इज इक्वल 17. आंसर इज ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A boat rows downstream at the speed of 18 km per hour and upstream at the rate of 14 km per hour. अच्छा देखो, x प्लस वाई कितना दिया 18 और x माइनस वाई कितना दिया हुआ है 14. अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो आएगा 2x बराबर 32, x बराबर 16 और x 16 आगे तो y कितना आएगा. ओके, हमको x अपॉन y का रेशियो पूछा हुआ है. ये जाएगा 16/2 या ए ऑप्शन. Next question. A boat rows at a speed of 8 km per hour in still water and the speed of stream is 1.5 km per hour. Find the speed of boat along the current. मतलब x plus y पूछा हुआ है. x is 8 plus 1.5. It is 9.5 km per hour. Answer is A option. Okay, next question. A boat rows at a speed of 7 km per hour in still water and the speed of stream is 1.75 km per hour. What will the speed of boat in against the stream? देखो यार, x की वैल्यू दी है 7 और y की वैल्यू दी हुई है 1.75 और आपसे पूछा है अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब x माइनस वाई पूछा हुआ है. 7 माइनस 1.75, इट इज 5.25. आंसर इज डी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A swimmer's speed with current is 8 km per hour and against the current is 2 km per hour in the river. What can be the speed of the swimmer in still water? देखो, x plus y आपको दिया हुआ है 8, बिकॉज यहाँ बोला हुआ है कि with current and against the current x minus y 2 km per hour. तो what will the speed of the swimmer in still water? दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, 10/2 और 5. आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The speed of swimmer against the current is 6 km per hour, whereas the speed of stream is 1 km per hour. The distance in kilometer covered by the swimmer in 1 hour in still water. देखो, x plus y, x minus y आपको दिया हुआ है 6, बोला है against the current and y आपको बोला हुआ है 1, तो x minus 1 is equal 6, x की वैल्यू होगी 7 km per hour. तो बोला है the distance covered by the swimmer in 1 hour in still water. Distance बराबर x into time. x है 7, time है 1, 7 km. Answer is C option. Next question. The speed of boat along the current is 12 km per hour and against the current is 6 km per hour. Okay, x plus y दिया है 12 और x minus y दिया हुआ है 6. Okay, x की होगी वैल्यू इन दोनों का सम, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, 12 प्लस 6/2 और 9 km per hour. ए ऑप्शन. A boat goes downstream 45 km in 4 hours. X plus y 44 upon 4 and upstream x minus y is equal 21 upon 7/2 और 6. ये हो गया 11. So x plus y हो गया 11 और x माइनस वाई हो गया 6. अच्छा, हमें y पूछा हुआ, दोनों घटा लो. 11 माइनस 6/2, ये हो गया कितना 2.5. आंसर हो गया ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल 10 km इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम. देखो, x दे रखा है 10 km per hour, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y दे रखा है 2 km per hour. ओके, तो
अगर आपको बोला अलोंग द स्ट्रीम तो x प्लस वाई हो गया आपका 12 किलोमीटर पर आवर, ये तो होगी स्पीड, और डिस्टेंस आपको जाना 30 किलोमीटर, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस 30 बाई स्पीड 12, 2.5 और सी ऑप्शन। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इन द रिवर इज 96 किलोमीटर। देखो ए से बी तक दो प्लेसेस हैं जिनकी दूरी है 96 किलोमीटर। अ शिप कैन रो एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम इन आवर वुड बी टेकन बाय द शिप टू रो फ्रॉम ए टू बी एंड रिटर्न। देखो यार, जब ये जाएगा, अब देखो एक्स दे रखा है आपको 20 और वाई दे रखा है 4, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गई 24, अप स्ट्रीम हो गई 60। ओके, अप स्ट्रीम स्पीड हो गई इसकी 16। नाउ देखो, जब एक बार जाएगा तो एक बार डाउन स्ट्रीम 96 माना डाउन स्ट्रीम गया, लौटा अप स्ट्रीम, तो ये हो गया कितना, 4 ये हो गया और 6 ये हो गया, 10 आवर्स लगेंगे। इसको आंसर हो गया ए ऑप्शन। ओके, द रेशियो ऑफ टाइम टू रो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम टू कवर सर्टेन डिस्टेंस 3:7। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक्स दे रखा है आपको 10 किलोमीटर पर आवर और आपसे y पूछा हुआ है। अच्छा, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई या 10 प्लस वाई, और अप स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी 10 माइनस वाई, राइट। अच्छा देखो बोला है द रेशियो टाइम टू रो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम कवर ए सर्टेन डिस्टेंस 3/7। देखो यार, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड 1 टाइम 1 बराबर स्पीड 2 टाइम 2 रेशियो होता है। स्पीड 1 और डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम इज इक्वल T2 अपॉन T1। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर 10 प्लस वाई हो गया, नीचे 10 माइनस वाई हो गया, टाइम हो उल्टा करना पड़ेगा 7/3, T2 अपॉन T1 है, तो दिस इज 30 प्लस 3y इज इक्वल 70 माइनस 7y, सो 10y इज इक्वल 40, y इज इक्वल 4। आंसर हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A man rows a boat downstream at 16 km per hour and upstream at 40 km per hour. What is the speed of the boat in still water? देखो यार, डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है 16, अप स्ट्रीम की स्पीड है 4, सो x और आपसे y पूछा है, y क्या होगा, डाउन माइनस अप बाई 2, 16 माइनस 4/2 और 12/2 और 6। आंसर हो गया। आपको पूछा x, तो डाउन प्लस अप बाई 2 और 20/2 और 10, तो अब आपकी स्पीड ऑफ बोट इन वाटर होगी 10, बी ऑप्शन। अ स्विमर कैन रो अलोंग द करंट विद ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर एंड अगेंस्ट द करंट विद ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो, डाउन स्ट्रीम दे रखा है 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड हो गई, x पूछा है आपसे d प्लस यू बाई 2 और 14 प्लस 3/2 8.5 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बोट रोज विद द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। देखो x की वैल्यू रखी है 16, y की वैल्यू रखी है 2। अच्छा, अप स्ट्रीम जाना है इसको, अप स्ट्रीम की स्पीड होगी 16 माइनस 2 और 14 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आपको टाइम दिया हुआ है 15 मिनट या 1/4 आवर कर लेते हैं, तो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम 14 इंटू 1/4 और 7/2 और 3.5 किलोमीटर। आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, A boat rows with a speed of 8 km per hour in still water and the speed of stream is 2 km per hour. In how much time will it cover the distance of 60 km going downstream? A boat rows with a speed of 8 km per hour in still water. देखो x दिया हुआ है 8, y दिया हुआ है 2 km per hour। अच्छा, डाउन स्ट्रीम जाना तो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी 8 प्लस 2 और 10, सो टाइम वुड बी distance into speed. Distance is 60, but distance divided by speed 60 by 10, 6 hours. Answer हो गया C option. How much time in hours will a boat take to cover a distance of 32 km along the current if the speed of boat is 12 km per hour and the speed of current is 4? देखो यार, x दे रखा है आपको 12,
y दे रखा है 4 और डिस्टेंस है 32 किलोमीटर। तो टाइम लगेगा, पहले तो आप देख लो, जाना है इसको अलोंग द करंट, मतलब डाउन स्ट्रीम जाना। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी कितनी, 12 + 4 और 16। सो टाइम हो गया डिस्टेंस 32/16 और 2 आवर्स। आंसर हो गया। देखो अभी तक जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे हो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इसी पर काम चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक्स हैं, प्रैक्टिस कर लो इनकी। अच्छा, अब ट्रेन का कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट ए सर्टेन स्पीड। देखो एक ट्रेन की लेंथ है 180 मीटर और एक पोल को पार करती है 9 सेकेंड में। तो स्पीड देखो, इन केस ऑफ पोल स्पीड वुड बी लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। तो लेंथ इज 180 टाइम 9, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। और हमको पूछा है किसमें किलोमीटर पर आवर, सो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज सी ऑप्शन। A 750 meter long train is running with a speed of 54 km per hour. How long will it take to pass a man standing near the railway line? देखो टाइम का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन स्पीड। बस समस्या आपको ध्यान के रखनी है, यहाँ पर लेंथ मीटर्स में है और स्पीड 54, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। ये हो गया 3:15 5 जा, आंसर हो गया 50 सेकेंड, राइट, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, इसको कन्वर्ट कर लो आप मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 5/18, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, हाउ लॉन्ग इट टेक्स 30 सेकंड टू पास 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ दे रखी है 250 मीटर और टाइम दे रखा है आपको 30 सेकेंड। तो मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन इज L। तो फॉर्मूला जानते हो, स्पीड बराबर L + L1 + L2 अपॉन टाइम। देखो स्पीड दे रखी है 15, टाइम 30 इधर आ जाएगा, ये हो गया L1 + 250। 450 बराबर L1 + 250। L1 लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 200 मीटर। आंसर हो गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A 600 meter long train running with a speed of 81 km per hour passes a bridge in 30 seconds। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्रिज है और ट्रेन है, माना ब्रिज की लेंथ है L। अच्छा, पार करती है 36, ये होगी स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि दी है हमको किसमें किलोमीटर पर, इनको 5/18 से मल्टीप्लाई, ये पूरा प्रोसेस होगा, आपको ये बहुत जल्दी सीखना है। देखो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला S बराबर L1 प्लस, या बल्कि फॉर्मूला था T बराबर L1 + L2 अपॉन x + -y। अब डिपेंड करता है क्या क्या दिया। देखो यहाँ पर आपको ब्रिज दिया तो ब्रिज की स्पीड होगी नहीं, तो सीधा सीधा करना है सॉल्व। 9 2 जा 9 9 जा, तो दिस इज 45/2, 2 से इसको काट लो 18 टाइम, तो 600 + L इज इक्वल 45 × 8। ओके, ये हो गया 810। So L is equal minus 600 is equal 210. The length of bridge is C option. Two trains of length 400 meter and 600 meter respectively are running in the opposite direction with the speed 52 and 38. In how much time? देखो यार, टाइम का फॉर्मूला L1 + L2 अपॉन x + y, अपोजिट डायरेक्शन है x + y, बस ध्यान रखना यूनिट का। देखो यार, ये 400 + 600। अच्छा, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 52, सेकंड ट्रेन इज 38, ये आ गया किलोमीटर पर आवर। इसको डिवाइड कर लो 5, मल्टीप्लाई करो 5/18 से। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मीटर पर सेकंड में। ऊपर हो गया 1000, नीचे हो गया 90 × 55/18, ये 5 टाइम्स कटा और ये 25 से 4 टाइम्स, 40 इज द आंसर, 40 सेकेंड्स। ओके, देखो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ बहुत जल्दी करना है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर रनिंग विद स्पीड 67 and 41। दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक्स एंड क्रॉस ईच अदर। देखो यार, मान लेते हैं लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज L, तो L + L अपॉन, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो अब आपको क्या ध्यान रखना है, अपोजिट डायरेक्शन जा रही हैं तो इनका स्पीड हो जाएगी x + y, 67 + 41, और ये हो गया 5/18 मीटर पर सेकंड। कई चीज़ें एक साथ करनी होती हैं। ऑन टाइम हो गया
1.5 मिनट या 90 सेकेंड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 108 इंटू 5/18 इज इक्वल 90। ये कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स, तो 12 इज इक्वल 6 इंटू 90 इंटू 5, तो ये कितना हो गया 1350। आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two trains of equal length are running in the opposite direction and they cross a man standing near the tracks in 5 and 7 सेकेंड। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन चल रही है तो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 होता है। तो 2 इंटू 5 एंड 7 अपॉन 7 प्लस 5, ये हो गया 35/6 या 5 होल 5/6। ऑप्शन नंबर ए। Okay, next question. A train crosses a man in 10 seconds and 200 meter long platform in 14 seconds. What is the length of the train? देखो, इस क्वेश्चन में क्या चीज कांस्टेंट है? स्पीड ऑफ द ट्रेन कांस्टेंट है, बिकॉज पहली बार में मैन को क्रॉस कर रही है लेंथ अपॉन स्पीड, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। दूसरे केस में 200 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है इन टाइम 2। देखो, स्पीड सेम रहेगी ट्रेन की, तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज एल, टाइम 1 10, लेंथ प्लस 200 अपॉन टाइम इज 14, तो ये हो गया 5, हो गया 7, 7L इज इक्वल 5L प्लस 1000, सो L बराबर 500। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रेन मूव फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई टुवर्ड ईच अदर आफ्टर द मीटिंग द फर्स्ट ट्रेन। अच्छा, इसका लॉजिक समझ लो आप लोग। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी डिस्कस किया था। एक्स वाई चलते हैं और इस पॉइंट पे मिलते हैं आफ्टर मीटिंग, माना इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। इसको लगता है t1 समय, इसको लगता है मिलने के बाद t2 समय। तो रूल होता है x अपॉन वाई इज इक्वल t2 अपॉन t1। देखो, अब फर्स्ट ट्रेन की स्पीड दे रखी है 60, y पूछा हुआ है, टाइम टू सेकेंड इज 225 एंड टाइम टू फर्स्ट इज 169, सो y वुड बी 60 इंटू 13 अपॉन 15, तो ये हो जाएगा 52 मीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर पर आवर। ये कॉन्सेप्ट मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक में डिस्कस किया, ये कैसे आता है, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। अ ट्रेन इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट वुड बी इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड? Okay, speed is 90 into 5 upon 18. This is 5 times. This is 25 kilometer per second. To convert the speed from kilometer per hour to meter per second, we will multiply it by 5/18. Next question. How much time will a train of length 600 meter running with the speed of 30 km will to take to cross a pole? अच्छा देखो, टाइम का फॉर्मूला हो गया लेंथ अपॉन स्पीड। लेंथ है 600 मीटर, स्पीड है 36 किलोमीटर, 5/18, ये हो गया 60 मिनट, 60 सेकेंड या 1 मिनट। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अ ट्रेन क्रॉसेस ए पोल इन 8 सेकेंड whereas a 5 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन? देखो, इसमें कांस्टेंट क्या है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो देखो, लेंथ अपॉन टाइम 1 टू क्रॉस अ पोल और लेंथ प्लस 500 टाइम t2 टू क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो देखो, वैल्यू पुट करो। पहले केस में टाइम 1 है 8 और दूसरे केस में टाइम है 18 सेकेंड, ये हो गया 4, ये हो गया 9, सो 9L इज इक्वल 4L प्लस 2000, सो 5L इज इक्वल 2000, L इज इक्वल 400। आंसर इज ए ऑप्शन। Two trains of equal length crosses a pole in 4 seconds and 6 seconds respectively. How much time will they take to cross it if they are running in the opposite direction? So the formula is T is equal to T1 T2 upon T1 plus T2. ये मैं कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। 2 into 4 into 6 upon 4 plus 6, 48 upon 10 और 4.8 सेकेंड। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
If a train overtakes two people who are walking in the same direction to the train with a speed of 12 meter per second and 20 meter per second in 5 and 9 seconds respectively, then find the speed of the train. Okay, देखो इस चीज में कांस्टेंट क्या है, देखो दो पर्सन को क्रॉस कर रही है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज कांस्टेंट, s1 t1 इज इक्वल s2 t2, राइट. नाउ s1 क्या होगा, बोथ पर्सन मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x. तो पहला केस x माइनस 12 टाइम इज 5, दूसरा केस x माइनस 20 टाइम इज 9. सो 5x माइनस 60 इज इक्वल 9x माइनस 180. सो 4x इज इक्वल 120, x इज इक्वल 30 सेकेंड, 30 meter per second. Answer is B option. Okay, next question. A 135 meter long train is running with a speed of 54 km per hour. How much time will it take to pass a telegraph pole? देखो टाइम पूछा है, टेलीग्राफ पोल की बात करते हैं, लेंथ अपॉन स्पीड 54 इंटू अपॉन 5 इंटू 5/18, ये हो गया 3 टाइम्स 15 9 टाइम्स, तो 9 सेकेंड. आंसर इज बी. देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, लॉजिकली आपको इंप्रूव होना पड़ेगा, प्रैक्टिस करो, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं. गया एंड पटना 95 किलोमीटर अपार्ट, गया एंड पटना आर 95 किलोमीटर अपार्ट. फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट विद स्पीड, गया से स्टार्ट करते विद स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर फ्रॉम गया टू पटना. देखो इसकी स्पीड है 35 किलोमीटर पर आवर. अच्छा 30 मिनट बाद, 30 मिनट्स अर्लियर अनदर ट्रेन स्टार्ट एट 40 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू गया. यहाँ पर 30 मिनट पहले 40 की स्पीड से एक ट्रेन स्टार्ट करती है, तो अब देखो इसका मतलब आधा घंटे पहले चली है, आधा घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, 20 किलोमीटर. भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, आधा, तो 20 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगी. अब ये ट्रेन चल रही है इधर विद द वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस बची 75, राइट. अब हम क्या करेंगे, इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 75 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कवर करनी है 75, टाइम लगेगा 75 अपॉन 75 और 1 आवर. ओके, तो आंसर इज सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ बट विद डिफरेंट स्पीड टेक्स 5 सेकंड 6 सेकंड टू क्रॉस अ पोल इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था 2t1 t2 अपॉन t2 माइनस t1. तो देखो 2 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 6 माइनस 5 और 60. आंसर इज सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A train covers a distance from station A to B in 2 hours. If the speed of train decreases by 6 km per hour, then it covers the station in 3 hours. Find the distance between the station A and station B and also find the speed of the train. देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. मान लेते हैं A से B तक डिस्टेंस है D. अच्छा मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. तो फर्स्ट कंडीशन d बाई एक्स इज इक्वल 2 hours. अच्छा दूसरी कंडीशन है इफ स्पीड इज डिक्रीज x माइनस 6 कर दिया तो इट टेक्स 3 hours. देखो दो इक्वेशन बन गई. अच्छा डिवाइड कर लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड करो आपस में. तो d बाई एक्स अपॉन d बाई एक्स माइनस 6 इज इक्वल 2/3. dd कैंसिल हो गया, x माइनस 6 अपॉन x इज इक्वल 2/3, या 3x माइनस 18 इज इक्वल 2x. सो x इज इक्वल 18. केवल एक ऑप्शन में 18 आ रहा है, तो आंसर इज ए. अच्छा अब इसका ऑप्शन बेस्ड तरीका क्या हो सकता था, देखो 18/6 करो, ये स्पीड आई है 18 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर होगा. और आप चेक भी कर ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो. देखो 36/18 2 आ रहा है, पहला ऑप्शन सही है, पहला पार्ट सही हो गया. अच्छा 18 में 6 कम कर लो, 12 होगा. 36/12 ये भी 3 आ रहा है, तो ये आंसर इज करेक्ट, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस ऑन 2 पैरेलल tracks in the same direction. The speed of train are 45 and 40 km per hour respectively. The distance between the two trains after 45 minutes. अच्छा देखो एक ही प्लेस से स्टार्ट करते हैं, एक की स्पीड है कितना 45, एक की 40, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 5 किलोमीटर पर आवर. अच्छा टाइम दिया है 45 मिनट, या इसको कर लो आप 3/4 आवर्स. तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम. 5 तो उनका रिलेटिव स्पीड हो गई है और टाइम है 3/4, 15/4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर एंड 3/4 750 मीटर. आंसर हो गया सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन.
two trains of equal length are running on parallel lines in the same direction at 46 and 36. The faster train passes the slower train in 36 सेकेंड. अब देखो माना कि लेंथ है l, तो l प्लस एल अपॉन टाइम कितना है 36 इक्वल स्पीड. स्पीड है सेम डायरेक्शन है 46 माइनस 36 और इसको 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. 18 से 2 टाइम कटा, 2l/2 इज इक्वल 10 इंटू 5, ये कट गया. लेंथ इज इक्वल 50 मीटर. आंसर इज बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. पी एंड 27 किलोमीटर पार्ट. देखो यार 2 पॉइंट्स हैं 27. टू ट्रेन्स विद स्पीड 24 and 18 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम पी एंड क्यू एंड ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन. अच्छा देखो ये जा रही है विद द वेलोसिटी 18 नहीं 24, ये जा रही है 18 से. तो देखो जब आगे बढ़ के कहीं आर पे मिलेंगे तो आपको ये डिस्टेंस पूछी हुई है. सिंपल सी बात है, ये 27. तो पहले हम देखेंगे कब कितनी देर बाद मिलेंगी. तो देखो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 24 माइनस 18 और 6 किलोमीटर पर आवर. अगर ये 6 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा चल रही है और चलना है 27, तो टाइम लगेगा 27/6 या 4.5 आवर्स. इसका मतलब ये ट्रेन भी 4.5 आवर चलेगी, आर पे पहुंचेगी. ये भी 4.5 आवर चलेगी, आर पे पहुंचेगी. हमको पूछा है क्यू आर, तो केवल क्या करना होगा हमको, देखो हमको निकालना होगा क्यू आर. तो क्यू आर के लिए ये वाली स्पीड 18 और टाइम 4.5 और ये जाएगा 81 किलोमीटर. आंसर हो गया बी ऑप्शन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, नोट कर लो. नेक्स्ट, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 500 फीट क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 7 फीट इन 10 सेकेंड. अच्छा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ L1 प्लस L2 अपॉन टाइम. तो L1 है ट्रेन की खुद की लेंथ 500, प्लेटफॉर्म की लेंथ 700 अपॉन 10, 1200 अपॉन 10 या 120 फीट पर सेकेंड. आंसर हो गया डी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Two trains of length 137 meter and 163 meter are running with the speed of 42 km per hour and 40 km per hour towards each other on parallel track. अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड हो जाएगी इनका सम 42 प्लस 48 कितना हो गया 90 और इंटू 5 अपॉन 18 कर दो 25 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम का फॉर्मूला हो गया L1 137 प्लस 163 अपॉन 25, ये कितना हो जाएगा 300 अपॉन 25 और 12. सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A train 110 meter long is running at a speed of 60 km per hour. How many seconds does it take to cross another train 1 centimeter long, 170 meter long, standing on parallel track? अच्छा, okay. Time is equal L1 plus L2 upon speed. तो देखो 110 प्लस 170 अपॉन स्पीड है किलोमीटर, तो इसको आप 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर दो. अच्छा अब ये हो गया 0 0 कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम्स गया 110 इंटू ये 0 पूरा कैंसिल होगा, ये हो गया 28 अपॉन 5 इंटू 3. ये हो जाएगा 16.8 सेकेंड. आंसर हो गया बी ऑप्शन. Okay, next question. Okay, a train traveling with uniform speed crosses two bridges of length 300 meter and 240 meter in 21 second and 18 second respectively. The speed of the train. देखो इस क्वेश्चन में ब्रिज को क्रॉस करें तो स्पीड इज सेम. तो स्पीड होता है L1 प्लस L2 अपॉन T1 इज इक्वल L1 प्लस L3 अपॉन T2. देखो यार ट्रेन की लेंथ हमको पूछा है. अच्छा हमको देखो पहले हम इनमें से L1 निकालेंगे. देखो L1 L2 कितना 300, उसको क्रॉस करिए 21 सेकंड में. L1 प्लस 240 उसको क्रॉस करती है वो 18 सेकंड में. तो ये 3 6 जा 3 7 जा मल्टीप्लाई कर लो. 6L1 प्लस 1800 इज इक्वल 7L1 1680. तो L1 इज इक्वल 1800 माइनस 1680 120. तो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी 120 मीटर. अब आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो. तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज L1 120 प्लस 300 अपॉन 21
420 अपॉन 21 या 20 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट कर लो इसको किलोमीटर पर आवर में, 20 इंटू 18/5 और 72 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A train with a uniform speed crosses a platform 162 meter long in 80 seconds and another platform 120 meter long in 15 seconds. देखो सेम पहले की तरह क्वेश्चन है। स्पीड इज इक्वल L1 प्लस L2 अपॉन टाइम 1 एंड L1 प्लस L3 अपॉन टाइम 2। चलो वैल्यू पुट करते हैं। L1 L2 कितना है 162, क्रॉस करता है 18 सेकेंड में। L3 कितना है 120 मीटर अपॉन 15, ये हो गया कितना 5L1 और 162 इंटू 5, ये हो गया 810 और इधर हो गया 6L1 प्लस 720। तो L1 कितना आ जाएगा यहां से 90 मीटर। सो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो गई L1 प्लस L2 बाई T1। सो 90 प्लस 162 अपॉन 18, ये कितना हो गया 252 अपॉन 18। आंसर हो गया 14 मीटर पर सेकेंड। और कन्वर्ट कर लो इसको आप 14 इंटू 18/5, ये हो गया 50.4। आंसर हो गया सी ऑप्शन। ओके। A train crosses a pole in 15 seconds and a 100 meter long platform in 25 seconds. Okay, the length, speed कॉमन रहेगी, पोल क्रॉस करने पे लेंथ और टाइम आएगा, और ब्रिज को क्रॉस करने पर, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम। 5 3 जा 5 5 जा। सो 5L इज इक्वल 3L प्लस 300, 2L इज इक्वल 300, L इज इक्वल 150 मीटर। सी ऑप्शन। Next question. Two trains of equal length take 10 seconds and 15 seconds respectively to cross a telegraph post. If the length of each train be 120 meter, then in what time will they cross each other traveling in opposite direction? देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें लेंथ की जरूरत ही नहीं है। टाइम हो गया 2 T1 T2 और अपोजिट डायरेक्शन T1 प्लस T2। तो 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 15 प्लस 10। This is 2 into 10 into 15 upon 25. 5 5 ja, 5 2 ja, 5 3 ja, 12. Answer is C option. Next question. Two trains 80 meter and 120 meter long are running at the speed of 25 km and 35 km per hour in the same direction on parallel. How many seconds will they take to pass each other? Time is equal L1 plus L2 upon X, because they are traveling in same direction, X minus Y. So L1 80 plus 120. अब ध्यान ही रखना नीचे किलोमीटर पर आ रहा है, 35 माइनस 25 इंटू 5 अपॉन 18। ठीक है भाई, ये हो गया 200 इंटू 18 अपॉन 10 इंटू 5, 72 सेकेंड। आंसर इज डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. In a fixed time, a boy swims double the distance along the current that he swims against the current. अच्छा देखो, माना कि डिस्टेंस d है, जब हम जाते हैं डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, और ये हो गया x माइनस वाई अप स्ट्रीम का, बोला है ये टाइम डबल है किसका, इस टाइम का, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ये हो गया 2x माइनस 2y इज इक्वल x प्लस वाई, या x इज इक्वल 3y। नाउ स्पीड ऑफ करंट दे रखा है 3, स्पीड ऑफ बॉय तो x इज इक्वल 9 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज डी। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A train is running at 36 km per hour. If it crosses a pole in 25 seconds, then its length is. देखो पहली बात तो 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लो आप मीटर पर सेकंड, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस या लेंथ इज इक्वल स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 10 और टाइम है 25। आंसर हो गया 250 मीटर। आंसर इज बी। Two trains of length 70 meter and 80 meter are running at speed of 68 km and 40 km per hour on parallel tracks in opposite direction. In how many seconds will they pass each other? Time is equal L1 plus L2 upon X plus Y. ओके, वैल्यू पुट करते हैं 70 प्लस 80 अपॉन, देखो अब बस ध्यान केवल ये रखना होगा इसमें कि ये
किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज 150/108 इंटू 5/18, ये हो गया 6 टाइम और 5। आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग crosses a man walking along the line in opposite direction at the rate of 3 km per hour in 10 seconds. ओके, देखो हम जानते हैं स्पीड क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम। देखो स्पीड दोनों लोगों की है और वो जो लड़का है वो जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। सो स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है हमको x + 3, और ये है हमारा किस में, किलोमीटर पर आवर में, इंटू 5/8। या एक काम करते हैं, हम इधर हम किलोमीटर आवर बना लेंगे। देखो 240 मीटर में कितने किलोमीटर, 1000 डिवाइड कर दिया और टाइम दिया 10 सेकंड, 10/60 इंटू 60 कर लो, जिसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, आप जरा सॉल्व करते हैं। 240 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 1000 इंटू 10, तो 10,000। देखो 1 2 3, ये जीरो कैंसिल हो गए। अच्छा, अब ये अच्छा डेसिमल में तो आना ही आना है। देखो दो आंसर डेसिमल वाले नहीं हो सकते, ये तो बिना डेसिमल नहीं हो सकते, क्योंकि देखो 4 जीरो नीचे हैं, ऊपर 3 जीरो है, तो डेसिमल आना ही आना है। अब ये आंसर हो जाएगा 86.4 x + 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 83.4। आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A boat goes 12 km downstream and comes back to the starting point in 3 hours. If the speed of the current is 3 km per hour, then the speed of the boat in still water. Okay, देखो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम कितने घंटे में आ जाता है, 3 आवर्स में। अब हम क्या करेंगे, देखो आपको y दे रखा है, x + 3 + 12/x - 3 = 3। कई तरीके हो सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। मेरा एक शॉर्टकट देखो, x को ऑप्शन मान लो, माना 12 मान लिया, 12 + 3 15, 12 - 3 9। 15 और 9 से कभी एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो ये वैल्यू नहीं आ सकती है। 9 ले लो, ये हो गया x + 3 12 और यहाँ हो गया 6, ये हो गया 1, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यस, 3 आ रहा है। यस, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये जुगाड़ करने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बोट कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अच्छा देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर्स, और उसके बाद 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6.5 आवर्स। अच्छा, अप स्ट्रीम हो गया x + y और डाउन x - y और डाउन स्ट्रीम हो गया x + y। रखते हैं 24/x - y प्लस 36/x + y = 6। इधर 36/x - y प्लस 24/x + y = 6.5। देखो यार, अब आप क्या करो, इसका और इसका ले लो HCF, 36 और 24 का कितना आएगा, 12 आएगा ना। ये 12 मान लो। अब जरा ध्यान देना इस टाइप को, 12 3 जा, ये 3 इधर आएगा, कितना हो जाएगा 3। अब ये 3 से डिवाइड करो 24 को, 8 आएगा। इस हिसाब से x - y 8 आ रहा है। देखो मैंने कुछ स्टेप फास्ट किया, एग्जाम क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन बहुत ढंग से प्रैक्टिस करना है। अगर ये 8 है तो यहाँ पर 8 रखो, ये हो गया 12 2 जा, और ये हो गया 8 से 4.5, ये 6.5 आ रहा है। यस, हमारा जंक्शन सही था। तो इसका मतलब x + y कितना हो गया 12 और x - y हो गया 8। हमको पूछा क्या है, y पूछा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। 12 - 8/2 या 2 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Speed of motorboat in still water is 45 km per hour. If the motorboat travels 80 km along the stream in 1 hour 20 minutes, then time taken by it to cover the same direction against था। देखो यार, आपको स्पीड दे रखी है 45, सो 45 प्लस एक y along the stream है, 45 जाता है वो 1 hour 20 minutes, 1 + 20/60 या 45/4/3 या 135/4। अच्छा, y कितना हो गया 135/4 - 45। ओके, दिस इज 80 नॉट 45। ओके, 80 हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 60। सो ये हो जाएगा कितना 60 - 45 और 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो, आप बोला है उसी डिस्टेंस को वो अगेंस्ट द करंट जाए, 80/45 - 15
कितना हो गया 80/30 या 2 hours प्लस 2/3 इंटू 60 कर लो 40 मिनट 2 hours 40 मिनट आंसर हो गया सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 54 अ सेलर गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 48 मिनट। अच्छा देखो यार 12 किलोमीटर अपॉन एक्स या बिल कैसे करते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल 12 अपॉन 48/60 15 and written x plus y is equal 12/4 या 9। ओके तो आपको x पूछा हुआ दोनों जोड़ लो x वुड बी 15 + 9/2 12 किलोमीटर पर आवर आंसर इज ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। The current of stream run at the rate of 4 km per hour, y is equal 4 km per hour दिया हुआ है। A boat goes 6 km and comes back to the starting point in 2 hours। तो देखो 6/x plus y, y का वैल्यू 4 है और 6 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल 2 hours। अच्छा अब देखो द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हम वही करेंगे ऑप्शन मेथड। अगर मैं रखता हूँ 6 तो ये जाएगा 6 + 4 10 6 - 4 2 2 से ये डिवाइड करो 3 आएगा जो कि मुझे 2 चाहिए। अच्छा अब हम रखते हैं 8 + 4 12 और 8 - 4 4 तो देखो ये हो जाएगा 6/12 प्लस 6/4 यह हो गया हाफ प्लस 3/2 ये मिलकर आ रहा है 2। इसका मतलब आंसर मेरा हो गया बी ऑप्शन। देखो कुछ क्वेश्चन ऑप्शन जल्दी हो जाते हैं, आप यहाँ पे सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनाओगे टाइम वेस्ट होगा। ये स्पीड आपको आनी चाहिए और आप ये शीट करने से पहले आप मेरी थ्योरी जरूर तैयार कर लीजिए क्योंकि थ्योरी मैंने बहुत से शॉर्टकट डिस्कस किए हैं। अब मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन टोटल ऑफ 8 hours। अच्छा बोट की स्पीड दे रखी है 4 टाइम द स्पीड ऑफ द करंट मतलब x इज इक्वल 4y सो 30 अपॉन 5y प्लस 30 अपॉन 3y इज इक्वल 8 hours। एलसीएम आ गया 15y 90 प्लस 150 इज इक्वल 8 सो y इज इक्वल 240 अपॉन 15 इंटू 8 ये जाएगा 16 टाइम और ये जाएगा 2 टाइम्स। सो करंट की स्पीड पहुंची दैट इज बी ऑप्शन। द स्पीड ऑफ बोट अलोंग द स्ट्रीम इज 12 किलोमीटर एंड अगेंस्ट द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर। एक्स प्लस वाई इज 12 एंड एक्स माइनस वाई इज 8 तो x आ जाएगा इससे कितना 10। देखो इन दोनों का सम बाई 2 बताया था फॉर्मूला। सो द टाइम टेकन बाय द बोट टू सेल 24 किलोमीटर स्टिल वाटर टाइम बराबर 24/10 या 2.4 hours आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ मैन इज स्टिल वाटर इज 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा देखो x दे रखा है आपको 5 y दे रखा है 3 तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी 5 + 3 या 8 तो टाइम कितना लगेगा 26/8 या 13/4 या 3 होल 1/4 बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ द वाटर इज 2 किलोमीटर पर आवर देन द टाइम टेकन बाय हिम टू स्विम 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई 4 - 2 और 2 किलोमीटर पर आवर तो टाइम लगेगा 10/2 और 5 hours आंसर इज सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ये मानो वो मानो प्रैक्टिस करो जल्दी जल्दी लाओ इन चीजों को और मेरे शीट को पहले आप ट्राई करो तब इस वीडियो को देखा करो। ओके अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स। अच्छा स्पीड आ जाएगी इसकी 10/12/60 और 5 या 50 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब नई स्पीड कितनी हो गई, कितनी डिग्रीज कर दी मैंने 5 किलोमीटर, अब हो गई 45 किलोमीटर पर आवर। नाउ टाइम टेकन हो जाएगा 10/45 ओके इंटू 60 कर लो 40/3 ये हो गया 13 मिनट और 20 सेकेंड आंसर हो गया बी ऑप्शन।